and F are points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR. आपको यहाँ पर P की लंबाई दी है, EQ की लंबाई दी है, PF की लंबाई दी है और FR की लंबाई दी है और आपसे ये पूछा गया है कि क्या EF पैरेलल है, यानी अगर साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे तो ये पैरेलल होगा. इफ साइड्स आर इन प्रोपोर्शन देन लाइन विल बी पैरेलल. दैट इज कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. सो व्हाट वी विल डू इज in triangle PQR, I'll solve the first problem. The first problem says, in the first problem what he has given is P is 3.9, EQ is 3, PF is 3.6 and FR is 2.4. So I'll take up the first one. First one says in triangle PQR, see, I'll solve the first problem. In the first problem what I'll do is in triangle PQR, P by EQ, I'll find out the ratio of PE and EQ. Let me see what is the ratio of PE and EQ. PE is 3 point this side divided by this side. So PE is 3.9 divided by EQ is 3. 3 means I'll write it as 3.0. Otherwise, even if I don't write it also, I think it is very simple to simplify. This will be equal to 1.3. The ratio of this side upon this side is 1.3. Similarly, let me take the ratio of this side upon this side, that is PF upon FR. PF upon FR. If I take the ratio of PF upon FR, let us see what I get. PF is 3.6 and FR is 2.4. So what I'll do, 3.6 divided by 2.4. So this, if I simplify, point cancels with point, so this becomes what, 36 by 24. And if I try to simplify, children, 12 3s are 36, 12 2s are 24. So this becomes 3 by 2, and 3 by 2 is equal to 1.5. 1.5. That means what? The ratio of this side upon this side is not equal to ratio of this side upon this side. And if the ratios are unequal, then we say that lines are not parallel. So what I can say is PE upon EQ is not equal to PF upon FR. PF upon FR. Therefore, EF is not parallel. Not parallel to QR. That's all. If the ratios are equal, then we say it is parallel. And if the ratios are unequal, then we say it is not parallel. Similarly, you can try for the second one. PE is given to you, QE is given to you, PF is given to you, and RF is given to you. So try to find out the ratio of this side upon this side and this side upon this side. If you find that the ratios are equal, then we say it is parallel. And if it is not equal, then you can say it is not parallel. So I have already done one type of problem, and I want that you should do the second by yourself. Now I will take up the third problem. In the third problem, what is said, let us see. PQ is equal to 1.28. The length of PQ is given to you, 1.28. PR is 2.56. This total length is 2.56. Then P is 0.18 and PF is 0.36. Yesterday only I told you that what we can do is this total length divided by this length is equal to this total length divided by this length. Or you can take this total length divided by this length and this total length divided by this length. So now what he has given to you is, he has given the length of PQ. So I will solve the third one, and I hope that you can solve yourself the second one. So what I will do here, PQ
PQ by what he has given, PE. So PQ by PE, I'll find out the ratio of it. PQ is 1.28 and the length of PE is 0.18. So after 2 digits point is there, after 2 digits point is there. So this becomes 128 divided by 18. 128 divided by 18. So this becomes, if I cancel it, 64, and this becomes how much? 9. So this becomes 64 upon 9. If I simplify it, it becomes 64 upon 9. If I want, I can call it as first equation. Next, in the same way, I will try to find out the ratio of PR and PF. Let us see what happens if I try to find out the ratio of PR and PF. PR divided by PF is equal to PR, the length of PR given to you is 2.56 and the ratio of PF is 0.36. So this, if I, after 2 digit point is there, after 2 digit point is there, so 256 divided by 36, if I simplify, let us see what I get. See here, 4 6 are 24, 4 4 are 16, 4 9 are 36. So children, what I am getting is 64 by 9. So what I got finally is this total length upon this side and this total length upon this side they are equal. So what we can say is sides are in proportion and therefore lines are parallel. So what I can say, from equation 1 and 2, from equation 1 and equation 2, I can say that PQ by QE is equal to PR by PF. Therefore, I can say EF is parallel to QR. That's all. EF is parallel to QR. So, out of 3 problems, I have solved 2 problems and I hope that you can solve the third problem yourself. Now the second problem, let says in the figure 6.18, LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. Then I have to prove that AM upon MB is equal to AN upon, it should be NE. It is AM upon MB is equal to AN upon NE. It should be AN upon NE. How we can do it? Let us see. How we can do it? Let us see. It is very simple to do this problem if you read the question carefully. I will use the clues given in the question and try to solve it. देखो क्वेश्चन में जो क्लूज है उसी को मैं यूज करता हूँ. पहला हिंट आपको दिया है LM is parallel to CB. LM is parallel to CB. वो कहाँ पर आता है? Let us see. कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? देखो थोड़ा ABC ट्रायंगल अगर मैं ले लूँ तो LM CB को पैरेलल है. तो कौन सा ट्रायंगल लिखूंगा मैं? यहाँ पर पहला हिंट यूज करूंगा मैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB. और लाइंस अगर पैरेलल होते हैं बच्चों तो साइड्स प्रोपोर्शन में होगा, यानी AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC. व्हाट इज इट? उन्होंने जो हिंट दिया उसी को यूज किया. पहला हिंट है सर ये इसको पैरेलल है, तो मैं कहता हूं दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, राइट. तो LM इज इक्वल टू है तो मैं लिखूंगा यहां पर AM अपॉन MB, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन CL या LC आप कह सकते हो. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. और ये कहाँ से आया? बाय थेल्स थ्योरम.
या बाय BPT मैं कहूँगा। तो मैंने क्या किया, पहला हिंट यूज़ किया और पहला प्रूफ लिखा। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा हिंट यूज़ करूँगा। दूसरा हिंट क्या दिया है मुझे, Ln इज पैरेलल टू CE, Ln इज पैरेलल टू CE। तो Ln अगर CE को पैरेलल है बच्चों, Ln अगर CE को पैरेलल है तो फिर से कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, वो इन ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE Ln CE को पैरेलल है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE उन्होंने दिया है मुझे Ln इज पैरेलल टू CE। तो Ln इज पैरेलल टू CE अगर है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि AL बाय CL इज इक्वल टू AN बाय NE बाय BPT। AL बाय LC इज इक्वल टू AN बाय NE। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 2, और ये कहाँ से आया, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना दिमाग मैंने कम लगाया, जो हिंट मुझे दिया है उसका इस्तेमाल किया। इफ़ यू से दैट दिस इज पैरेलल टू दिस, what I understand is this side divided by this side is equal to this side divided by this side. If you say that this side is parallel to this side, what I understand is this side upon this side is equal to this side upon this side. So what you say and what I understand, it should be perfect. Then you can solve any problem in maths. Now what I'll do is compare the first and the second equation. Comparing first and second equation. What I get is AM by MB is equal to AL by LC, and AL by LC is equal to AN by AN. This is equal to this and this is equal to this. यानी ये पहला दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो पहला तीसरे के बराबर होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NE, AN अपॉन NE। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ। ये मैं बोल सकता हूँ हेंस प्रूव्ड। फिर से मैं आपको बता दूं, मैंने क्या बहुत बड़ा चमत्कार नहीं किया है। मैंने क्या किया है, इसके अंदर ये साइड अगर इसको पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये इसको पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो दोनों अगर सेम हो रहे हैं तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। सिंपल है, जो हिंट उन्होंने दिया है उस हिंट का इस्तेमाल आप करो तो बेहतर होगा। अब हम तीसरे प्रॉब्लम की तरफ आएंगे। फिर से मैं हिंट की बात करूंगा। पहला हिंट मुझे दिया है D इज पैरेलल टू AC। इन द फिगर D इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE, देन प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू B अपॉन EC। देखिए ज़्यादा टेंशन मैं नहीं लूँगा। पहला काम मैं क्या करूँगा, D इज पैरेलल टू FC, D इज पैरेलल टू AC। पहला हिंट मुझे दिया है। अगर DE पैरेलल टू AC होता है, DE पैरेलल टू AC होता है तो वो कौन से ट्रायंगल में संभव है, ABC ट्रायंगल में पॉसिबल है। DE, देखिए फिर से मैं बता दूं आपको, DE ये वाला आपका साइड है DE और ये वाला आपका साइड है AC। तो ये DE और ये AC अगर पैरेलल होना चाहिए तो वो ट्रायंगल होगा ABC। तो मैं ऐसे लिखूंगा, इन ट्रायंगल ABC, ये आपने दिया है, मैं अपने मन से कुछ नहीं लिख रहा हूँ। आपने कहा कि DE AC को पैरेलल है, तो आपने कहा कि DE AC को पैरेलल है। मेरी समझ में आया कि BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो मेरी समझ में क्या आया, मेरी समझ में यह आया कि BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, इज इक्वल टू BE अपॉन EC। सर ये कहाँ से आया,
फिर से मैं वही बताऊंगा आपको बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है अगर कोई साइड पैरेलल है तीसरे साइड को तो साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। तो मैंने पहला हिंट लिया, पहला हिंट का इस्तेमाल किया और पहला प्रॉब्लम, पहला पार्ट मैंने सॉल्व किया। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हिंट मुझे दिया है सर ये DF और ये AE पैरेलल है, DF और AE पैरेलल है, तो DF और AE की बात चलेगी तो मेरे दिमाग में ट्रायंगल आएगा ABE। देखिए फिर से मैं बता दूं, DF है, ये है DF और ये है AE, तो DF और AE कौन से ट्रायंगल में आएगा? ABE ट्रायंगल में आएगा। तो मैं उसी को ले रहा हूं कि इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE हम ऐसे बोल सकते हैं कि DF इज पैरेलल टू AE। ये मैं नहीं कह रहा हूं बच्चों, ये उन्होंने दिया है, DF इज पैरेलल टू AE। ये कहाँ से आया? ये मैं अपने मन से कभी नहीं लिखता कुछ भी, गिवन। तो अब हम उस ट्रायंगल को लेंगे DF इज पैरेलल टू AE है। तो बच्चों थोड़ा ध्यान देना, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। तो क्या होगा? BD अपॉन DA, BD बाय DA इज इक्वल टू BF बाय FE इज इक्वल टू BF बाय FE। और इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 2। फिर से कहाँ से आया ये? बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हम एक काम करेंगे, वही पिछला स्टेप फिर से रिपीट करेंगे। पिछला स्टेप में हमने क्या किया था? कंपेयरिंग फर्स्ट एंड द सेकंड इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and equation 2 we get क्या मिलता है हमको, देखेंगे हम। देखिए लेफ्ट साइड है BD बाई DA इज इक्वल टू BE बाई EC, यहाँ पर लेफ्ट साइड है BD बाई DA इज इक्वल टू BF बाई FE। यानी देखिए मैं ऐसे कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों, तो ये दोनों राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यानी क्या होगा? BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। तो ये होगा, आपको यही तो प्रूव करना है, BF अपॉन FE इज इक्वल टू B अपॉन EC। तो दैट इज इक्वल टू B अपॉन EC, इट शुड बी B अपॉन EC। या फिर यहाँ पर मैंने उल्टा लिया है बच्चों, B अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। या इसको अगर उल्टा करके ऐसे लिख दूँ तो, मैं पलट के लिख दूँ तो क्या होगा? BF अपॉन FE इज इक्वल टू B अपॉन EC। ये है आपका हेंस प्रूव्ड। तो आपका सेकंड प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व करके दे दिया। नाउ थर्ड प्रॉब्लम की बात आती है। देखिए हर प्रॉब्लम में एक बात आपने देखा होगा कि आई एम एक्टिंग वेरी स्मार्ट मैनर में मैं एक्ट कर रहा हूँ। जो हिंट मुझे दिया है उसी ट्रायंगल को मुझे लेना है और फिर उसी को लेके सॉल्व करना है। थर्ड प्रॉब्लम मुझे दिया है 6.2 में, इन द फिगर D इज पैरेलल टू OQ। जैसे ही वो कहता है D इज पैरेलल टू OQ, तुरंत मैं उस ट्रायंगल को ढूंढता हूँ जहाँ पर मुझे D और OQ मिलता है। फिर DF इज पैरेलल टू OR, फिर शो दैट EF अपॉन QR, EF इज पैरेलल टू QR। ये मुझे प्रूव करना है। तो देखते हैं इसको मैं स्टेप वाइज कैसे करता हूँ
और हिंट का इस्तेमाल कैसे करना है ये हम स्टेज्ड फेज्ड मैनर में देखेंगे। यहाँ पर देखो पहला हिंट मुझे दिया है D इज़ पैरेलल टू OQ, तो मैं उस ट्रायंगल को ढूंढूंगा जहाँ पर D और OQ पैरेलल है। D OQ को पैरेलल है वो वाला ट्रायंगल हम ढूंढेंगे। तो जहाँ पर D इज़ पैरेलल टू OQ है वो ट्रायंगल है आपका POQ। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ट्रायंगल POQ लोगे आप। तो ले लीजिए उस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ D इज पैरेलल टू OQ। ये कौन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये तो गिवन है D OQ को पैरेलल है, राइट। अगर वैसी बात है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। P से लेकर E तक का लेंथ और E से बाय Q और PD बाय DO इक्वल होंगे बाय थेल्स थ्योरम। तो मैं क्या कह सकता हूँ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। इसको मैं कहूँगा फर्स्ट इक्वेशन, और ये कहाँ से आया, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हिंट आपको क्या दिया है और उस हिंट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। DF इज पैरेलल टू OR, ये DF है ये OR है, तो आपको उस ट्रायंगल को ढूंढना है जहां पर DF और OR होगा। तो ये DF है ये OR है, यू हैव टू फाइंड अ ट्रायंगल वेयर DF एंड OR इज देयर। सो naturally I hope you got the value this one. Yes sir, we got it sir. What is it, in triangle POR, in triangle POR what is given to you, DF is parallel to OR, ये गिवन है, DF is parallel to OR ये गिवन है। तो वैसी बात होती है बच्चों, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि PD बाय DO इज इक्वल टू PF बाय FR। तो व्हाट आई कैन से इज PD बाय DO इज इक्वल टू PF बाय FR, PF बाय FR, and this is what is my second equation. And how it has come, again it has come by Thales theorem या BPT, by Thales theorem. Now same method, see almost in all the three problems we are using the same method. Now again the third step is comparing first and the second equation. What we will do here is we will comparing equation 1 and equation 2. What we get, you see, PE by EQ is equal to PD by DO, and thus PD by DO is equal to what, PF by FR। यानी पहला वाला इक्वेशन दूसरे के बराबर है और दूसरा वाला तीसरे के बराबर है, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी क्या होगा, PE by EQ is equal to PF by FR, PF by FR। थोड़ा देखते हैं हमने क्या प्रूव किया है, आइए थोड़ा मेरे साथ देखिए मैंने क्या प्रूव किया है। PE by EQ इज इक्वल टू PF by FR। फिर से मैं बता दूं आपको, PE by EQ इज इक्वल टू PF by FR, यानी साइड्स आर इन प्रपोर्शन। अगर साइड्स आर इन प्रपोर्शन होगा बच्चों तो कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है लाइन्स आर पैरेलल, यानी EF इज पैरेलल टू QR। साइड्स आर इन प्रपोर्शन, सो EF is parallel to QR. So therefore I can say
EF is parallel to QR, और यही तो मुझे प्रूव करना है, इसलिए मैं यहाँ कहूँगा हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सो बच्चों, एक बात आपने देखा कि हमने यहाँ पर जो हिंट आपको दिया है, इस हिंट का उपयोग हमने किया और हर प्रॉब्लम को विथ द हेल्प ऑफ हिंट हमने सॉल्व किया है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा प्रॉब्लम्स समझ में आ गया होगा।